Okay, so now let us see this question number 7. The balance sheet of H Limited as on 31st March 2011 was as follows. Liabilities, share capital, authorized, issued and fully paid, 10,006% cumulative preference shares of rupees 10, 1 lakh, 15,000 ordinary shares of rupees 10 each, 1,50,000. So total is 2,50,000. 7% debenture 60,000, interest due thereon 4,200, bank overdraft secured on freehold land and building and plant, that is 20,000. Creditors are given 50,000. Freehold land and building is given, plant is given, tools and dies, investment, stock, debtors, research and development expenditure or profit and loss account. The scheme of reorganization detailed below has been agreed by all the interested parties and approved by the court. You are required to prepare the journal entries recording the transaction in the books including cash and the balance sheet of the company as on 1st April 2011 after completion of the scheme. The following assets are to be revalued as shown below. Plant 59,000, tools and dies 15,000, stock 30,000, debtors 48,700. The research and development expenditure and the debit balance of P&L account are to be written off. Piece of land recorded in the books at 6,000 is valued at 14,000 and is to be taken over by the debenture holders in part repayment of the principal. The remaining freehold land and building are to be revalued at 40,000. The creditor of 18,000 has agreed to accept a second mortgage debenture 10% per annum secured on the plant for 15,500 in settlement of his debt. Other creditors totaling 10,000 agree to accept a payment of 0.85 in a rupee of the immediate settlement. The investments at a valuation of 22,000 are to be taken over by the bank in settlement of their bank overdraft. The ascertained loss to be met by writing down the ordinary shares to rupees 1 each and preference shares to 8 each. The authorized share capital is to be increased immediately to the original amount. Okay. The ordinary shareholders agree to subscribe for 2 new ordinary shares at par for every 1 share held. This cash is fully received. The cost of the scheme is 1,500. These have been paid and are to be written off. The debenture interest has also been paid. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई बिलीव ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हम इसकी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं. तो हम एक एक करके ट्रांजेक्शन्स वापस से रीड आउट करेंगे और जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. ठीक है, चलो तो लेट अस रीड दिस फर्स्ट ट्रांजेक्शन. फॉलोइंग एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज शोन बिलो. तो प्लांट को 59,000 करना है, 96,000 का था, 59 करना है, तो आई बिलीव कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट. टूल्स एंड डाइस को 15,000 और स्टॉक को 30,000 और डिबेंचर्स डेटर्स को 48,700. आई को ये सब आप खुद कर सकते हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के साथ में. इसके बाद जो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन भी है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल को भी राइट ऑफ करना है, वो इसी के साथ मर्ज कर देंगे हम. फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन आप इजीली कर पाओगे, इन सब की आपको एंट्री आ जाएगी करनी. इसके बाद अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन जो इंपॉर्टेंट बने उसके बारे में बात करते हैं. पीस ऑफ लैंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट 6,000 इज वैल्यूड एट 14,000 एंड इज टू बी टेकन ओवर बाय द डिबेंचर होल्डर्स इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर प्रिंसिपल. तो 60,000 में से 14,000 का डिबेंचर तो चला जाएगा, सॉरी ये चला जाएगा लैंड, पीस ऑफ लैंड जो बुक्स में 6,000 का था उसको 14,000 पे करा, तो 8,000 का तो रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है आपको लैंड पर. और जो रिमेनिंग फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है उसको हम रिवैल्यू कर रहे हैं 40,000 पर. तो पहले आप ये बताओ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितना दिख रहा है? 34,000. 34 में से 6,000 हटा दोगे तो बचेगा 28,000. 28 को 40 पर वैल्यू कर रहे हो आप, और जो 6,000 है उसको 14,000 पर. तो 6,000 वाले का 14,000 पे, तो 8,000 का तो कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट हो गया. और 28,000 को 40,000 कर रहे हो आप, तो 28 का 40 करा तो 12,000 का वो प्रॉफिट हो गया. तो 12 और 8 20,000 का प्रॉफिट हो गया. तो हम इसकी डायरेक्टली एंट्री भी पास कर सकते हैं.
दैट इज फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। अब 14,000 पर जो डिबेंचर लेकर के जा रहा है उसकी एंट्री हो जाएगी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 14,000। तो 34 प्लस 20 फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 54 हो गया, उसमें से 14,000 का चला गया तो 40,000 का फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग बच गया। जर्नल एंट्री समझ में आई गई सबको? ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली थर्ड वाले के लिए। तो इसकी दो एंट्री, पहली एंट्री फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन मिलाकर के टोटल 20,000 हो गया, और सेकेंड एंट्री 7% डिबेंचर्स टू फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 14,000। बाकी के डिबेंचर्स रह जाएंगे। अभी आगे पढ़ते हैं। अ क्रेडिटर फॉर 18,000 हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट अ सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर 10% per annum secured on a plant for 15,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेकेंड मॉर्गेज 10% सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर 15,500 टू कैपिटल रिडक्शन 2,500। Other creditors totaling 10,000 agreed to accept a payment of 0.85 in a rupee for the immediate settlement. तो other creditors totaling 10,000 उसको 8,500 हो रहे हैं for the immediate settlement. Entry will be creditors account debit 10,000 to bank 8,500 and to capital reduction 1,500. फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं हम। The investments at a valuation of 22,000 are to be taken over by the bank in settlement of bank overdraft. ठीक है, तो पहले तो इन्वेस्टमेंट जो था वो कितने का था आपके पास क्वेश्चन में? तो आई बिलीव इन्वेस्टमेंट था 15,000 का, जिसको आपने वैल्यूएशन कितने पर करा? 22,000 पर। तो पहली एंट्री तो हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 7,000। फिर इसको बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट सेटलमेंट कर रहे हो आप, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था आपके पास? 20,000 का था। इसको हम पे करें 22,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट्स, तो एंट्री विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 20,000, कैपिटल 2,000 का नुकसान हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,000 टू इन्वेस्टमेंट 22,000। दोनों एंट्रीज को मर्ज करना चाहो तो मर्ज कर सकते हो, और जब दोनों एंट्रीज को मर्ज करोगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 15,000 टू कैपिटल रिडक्शन 5,000। ये भी कर सकते हो आप। तो ये बात कर ली फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन की। ठीक है, चलो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन को रीड करोगे। द एसर्टेन लॉस is to be made by writing down the ordinary shares to ₹1 each and preference shares to 8 each. तो आई बिलीव ये वाली एंट्री आपको करनी आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू टू कैपिटल रिडक्शन। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की भी कर सकते हो आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू टू कैपिटल रिडक्शन। और जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल उसको इंक्रीज करना है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर जो सेवेंथ पॉइंट है उसमें बताया है द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 2 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार फॉर एवरी शेयर हेल्ड, और ये कैश फुली रिसीव्ड हो गया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मगर इसमें अमाउंट कितना आएगा? तो आई बिलीव आपके पास पहले शेयर 15,000 ऑर्डिनरी शेयर, तो एक शेयर के बदले 15,000 शेयर थे ना, और हम उसको रिटर्न डाउन ऑर्डिनरी शेयर तो ₹1 ईच ही करें तो शेयर तो नंबर ऑफ शेयर तो 15,000 ही रहेंगे, फेस वैल्यू कम हो रहा है। तो अब 15,000 के वो कितने हमें एक शेयर के 2 शेयर ले रहे तो 30,000 शेयर लेंगे ₹1 ईच का, तो ये एंट्री 30,000 से आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्कीम 1,500 रुपए, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1,500, और जो डिबेंचर इंटरेस्ट भी आपने पे कर दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4,200 टू
Bank. Yeah, directly. Okay. So now let us see this question number 7. The balance sheet of H Limited as on 31st March 2011 was as follows. Liabilities, share capital, authorized, issued and fully paid, 10,006% cumulative preference shares of rupees 10, 1 lakh, 15,000 ordinary shares of rupees 10 each, 1,50,000. So total is 2,50,000. 7% debenture 60,000, interest due thereon 4,200, bank overdraft secured on freehold land and building and plant, that is 20,000. Creditors are given 50,000. Freehold land and building is given, plant is given, tools and dies, investment, stock, debtors, research and development expenditure or profit and loss account. The scheme of reorganization detailed below has been agreed by all the interested parties and approved by the court. You are required to prepare the journal entries recording the transaction in the books including cash and the balance sheet of the company as on 1st April 2011 after completion of the scheme. The following assets are to be revalued as shown below. Plant 59,000,